أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ربنا ورب الملائكة الصادقين ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد ومحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وأنا من الحسین۔ میرے محترم ناظرین سامعین گرامی قدر، ایام اربعین ہیں، ہم زائرین کے قدموں کی جگہ پہ اپنے قدم رکھے بیٹھے ہیں جہاں سے زائرین چل رہے ہیں۔ مشی کا یہ سیزن ہے، اور میں نے جس حدیث مبارک کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور میں نے اربعین کے ایام میں اس حدیث کو اس لیے تلاوت کیا تاکہ دنیا یہ یاد رکھے کہ مصطفیٰ فرما گئے ہیں جب تک مصطفیٰ ہیں تب تک حسین ہے، جب تک مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ایک فرد بھی باقی ہے تب بھی حسینیت باقی رہے گی۔ یہ سلسلہ ایام حسینی، مشی کے ایام، یہ وہ دن ہیں، یہ وہ لمحے ہیں جو ہر عاشق حسین کی تمنا ہوتی ہے کہ میری سانسیں کچھ ان راہوں میں گزریں اور میں ان چلنے والوں کی خاک کو اپنے آنکھوں کا سرما بنا سکوں، ان کی دھول کو اپنے سر کا تاج بنا سکوں۔ تو اللہ نے توفیق دی، آپ کے درمیان یہاں بیٹھا ہوں اور ان زائرین کے قدموں کو اپنے سر پہ لیتے ہوئے خطاب کا موقع حاصل ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس اربعین میں ایک پیغام ہے عالم اسلام کے لیے، تمام دنیا کے لیے، اور ہر اس عاشق امام حسین کے لیے جو امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ ہماری ایک تمرین ہے، ہماری ایک پریکٹس ہے کہ جس کے ذریعے ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو ہمیں امام حسین نے 1450 سال پہلے صدا دی تھی، اس پہ ہم لبیک کہتے ہوئے آج اس انداز میں تمہارے سامنے آ رہے ہیں۔ جب ہمارا وقت کا امام زمانہ علیہ السلام پکاریں گے پھر ہم کس طرح سے امام کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ آنے والوں کے لیے اجر اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، ان کی منزلت، ان کا شرف سب اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پہ آنے والوں کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہی ہے کہ جو معنویت، جو روحانیت، جو عشق حسین میں اضافہ یہاں ملتا ہے، ہر جگہ ملتا ہے لیکن یہاں پہ اس کا انداز ہی مختلف ہے۔ یہاں پہ آنے والے جو امام حسین کی صدا پہ آئے ہیں، یہاں پہ آنے والے جو اپنے امام سے عشق کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا دنیا میں بھی تعلق اپنے اسی امام سے ہے اور ہم آخرت کی امید بھی اسی امام سے رکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ سلسلہ امام زمان کی نسبت ہے اربعین سے ظہور تک، تو اس میں آگاہ کرنا چاہوں گا کہ جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو امام کے آنے کے بعد جو حالات ہوں گے، جو امام کے آنے کے بعد جو مولا کا لشکر ہوگا اس کا طریقہ کیسا ہوگا، تو اس کی مثال ہمیں یہاں نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں جب امام نے آنا ہے، امام نے آ کے اعلان کرنا ہے، امام کے ظہور کا اعلان ہونا ہے، خانہ کعبہ میں مولا نماز پڑھیں گے اور وہاں سے پہلی صدا امام کی بلند ہوگی۔ دنیا کا کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جو امام کی صدا کو نہیں سنے گا اور امام کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا امام کی طرف دوڑا چلا آئے گا۔ یہ چیز آپ کو یہاں نظر آئے گی۔ جیسے ہی اربعین کے ایام نظر آتے ہیں، ہر مومن جو عشق حسین میں سرشار ہے، جس کے دل میں اللہ نے حسین کی محبت کو پیدا کیا ہے، وہ اپنے گھر میں بےتاب ہے، اپنے گھر میں بے چین ہے، وہ آنا چاہتا ہے، وہ آ کے مولا کی صدا پہ لبیک دینا چاہتا ہے، وہ اپنے امام سے ملاقات کا مشتاق ہے، اور جتنے لوگ ہو سکتے ہیں، وسائل ہیں، ذریعے ہیں، یا ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ آ جاتے ہیں، لیکن جو نہیں آ پاتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آنا نہیں چاہتے ہیں، وہ مشکل رکاوٹیں ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا سے اتنے افراد یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں کہ کیلکولیٹر اب تھک گئے ہیں، گننے والے قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، دیکھنے والے حیران ہیں، سوچنے والے فکر میں ہیں کہ اتنے سارے لوگ، یہ اتنا بڑا ازدحام، یہ اتنا بڑا رش جو ہے یہ کہاں سے جمع ہو جاتا ہے۔
और देखते देखते ही इतनी बड़ी तादाद बन जाती है, इतना बड़ा हजूम बन जाता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। लाखों में नहीं, अब तो करोड़ों से बात ऊपर चली गई है, और आवाज इतनी ज्यादा अब इमाम हुसैन की सदा पे दोबारा जवाब में आ रही हैं कि लोग हैरान हैं। यहां पे जब लोग आते हैं, ये एक लश्कर नजर आ रहा है हमें, जो लश्कर बहुत ही बड़ी तादाद में है। लेकिन ये ना समझे कि ये इमाम हुसैन की आवाज पे मुकम्मल शियों का लश्कर आ चुका है। ये तो एक मुख्तसर सा हिस्सा है। मोमिनीन की आबादी तो इससे कई गुना ज्यादा है, वो तो कई गुना ज्यादा लश्कर रखते हैं। लेकिन यहाँ पे आने वालों को देख के, जो कि एक मखसूस हिस्सा जो किसी ना किसी जरिए से यहाँ पे पहुंच पाता है, बहुत सारे जो नहीं पहुंच पाए वो अपनी जगह बाकी हैं, लेकिन यहाँ जो हिस्सा आ चुका है वो हिस्सा अब यहाँ पे पहुंच के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दौर की चीजों को उजागर कर रहा है। कैसे? देखिए, यहाँ पे आने वाले लोग एक मुल्क से नहीं हैं, एक सकाफत से नहीं है, एक मिजाज से नहीं है, उनकी तबीयत एक नहीं है, उनकी ज़बानें मुख्तलिफ हैं, अंदाज मुख्तलिफ है, हर किसी का स्टाइल, हर किसी की सोच, हर किसी की फिक्र मुख्तलिफ है। लेकिन यहाँ पे आके कोई भी अपनी अलहदा फिक्र, अपनी अलहदा सोच, अपने अलहदा मिजाज का इजहार नहीं करता है। जो भी आ रहा है एक ही मिजाज नजर आ रहा है, और वह है मिजाज हुसैनी। चल रहे हैं करोड़ों लोग, ये फिक्र याद रखिएगा, 5 से 6 करोड़ की तो फिक्र जा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। 6 करोड़ लोग एक जगह पे चल रहे हैं, ना कोई किसी से बद इखलाकी से पेश आ रहा है, ना किसी को भी तजावुज कर रहा है, ना कोई किसी पे जुल्म कर रहा है। क्या हो रहा है? हत्ता के इतने बड़े इज्तिमात जहां पे जमा होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो दुनिया में इससे बड़ा इज्तिमा जमा हुई नहीं हुआ, ये तो हुसैन के नाम पे जमा होने वाले हैं। लेकिन जहां इससे छोटे इज्तिमात भी जमा हुए हैं, मुल्क की पूरी पूरी हुकूमतें लगी हुई हैं कि इनको हम सेट कर सके। मुल्क का पूरा निजाम एक तरफ से मफलूज होकर रह जाता है कि इन लोगों को हम फैसिलिटीज कर सके, इन लोगों को हम सहूलियात दे सके जिसके हमने पैसे लिए हैं। तब हर चीज पैसे के जरिए करता है ना। लेकिन यहां पे अजीब मंजर है, तादाद इतनी है कि लोग गिन नहीं पा रहे, लेकिन उसके बावजूद कोई किसी से शिकवा नहीं कर रहा, कोई यहां भूखा नहीं सो रहा, कोई यहां पे किसी से तंग नहीं है। तो इसी को कहते हैं कि जब इमाम ज़माना का लश्कर बनेगा उसका मिजाज भी ऐसा होगा। इमाम ज़माना की जब फौज बनेगी, अदल और इंसाफ ऐसे होगा, कोई किसी से तंग नहीं होगा। आओ देखो यहाँ को किसी से तंग है, ये मेहदी के फौजी तैयार हो रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद है, कहीं लड़ाई हो रही हो आपको नजर आया हो? नहीं, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का लश्कर भी ऐसा होगा। और यहां पे जो चलने के लिए आए हैं, क्योंकि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने ज़हूर फरमाना है तो उस वक्त मुश्किलात भी आएंगी, क्योंकि मुखालिफ लश्कर भी होगा, बाकायदा जंग होगा, कताल होगा, तो मुशक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, तकालीफ आएंगी। उसकी मिसाल यहां देखिए, यहां पे जो इमाम हुसैन की सदा पे लब्बै कहने के लिए आए हैं, अब उनके लिए आसानियां नहीं हैं। उनके चलने की वजह से पांव में छाले पड़ रहे हैं। इराक की गर्मी 48-50 तक टेम्परेचर जा रहा है, इस तपती हुई धूप के अंदर नंगे पांव चल रहे हैं। पानी की प्यास भी है, भूख का गलबा भी है, तमाम चीजें हैं। और वो लोग जो अपने घरों में एक आसाइश की जिंदगी बसर करते हैं, मगरबी मुमालिक से आने वाले, पाकिस्तान, इंडिया, दुनिया के हर मुल्क से आने वाले, सब ऐसा थोड़ी है कि मुश्किलात की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अपनी आसाइशों को छोड़ के तकलीफों को अपनाने के लिए आए हैं, और ये तकलीफें अपना रहे हैं खुशी के साथ। क्यों खुशी से अपना रहे हैं? और यही फरमा रहे हैं कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इश्क में चले आ रहे हैं, हमें हुसैन को मिलना है, हमें हुसैन की जियारत करनी है, हमें अपने मौला से जाके कलाम करना है, अपने इमाम से बातें करनी हैं। तो ये लोग चले आ रहे हैं, तो इसमें वो चीज नजर आएगी कि मुश्किलात को कबूल करने के लिए तैयार हैं, मुसीबतों को गले लगाने के लिए तैयार हैं, तकलीफ को इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। ये सारा लश्कर चलता हुआ आ रहा है, और यही लश्कर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लश्कर में इंशाअल्लाह शामिल होगा। फिर उसके बाद यहां पे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का लक़ब है मंसूर, यानी जिसकी मदद की जाए। ना सिर्फ मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की जाए। यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मदद करने के लिए भी लोग जो आएंगे तो उन्हें इमाम ज़माना मंसूर के लक़ब से जानेंगे, यानी इमाम की वाकई मदद करेंगे, ये मदद करने वाले होंगे। अब इसकी मिसाल पेश अर्ज करूं, यहां पे देखें मदद करने वाले कितने हैं, जिनकी मदद की जा रही है वो कितने में है। नासिर मंसूर का आपको इतलाक और जोड़ यहां पे नजर आएगा। यहां पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में बेहतरीन जिंदगी बसर कर रहे हैं, महल्लात में रहने वाली जिंदगी है, लेकिन यहां
इनकी मदद करने के लिए जमीन पे बैठे हैं, हाथों में कपड़ा है और उनके जूतों को साफ कर रहे हैं। अपने हाथों में खाना लिया है, हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं, ऐ ज़ाहिर इमाम हुसैन मेरे हाथों से खाने के 2 नवाले ले ले, ताकि मैं अपने इमाम की बारगाह में कह सकूं कि मौला तेरे ज़ाहिर की मैंने खिदमत की है। अभी तो इमाम हुसैन का अजर तो अपनी जगह बाकी है, जो हुसैन के ज़ाहिरीन की खिदमत का जोश जज्बा है, जो इश्क इनके अंदर आ चुका है कि ये हुसैन का ज़ाहिर है, ये हुसैन का चाहने वाला है, तो उसकी मदद कर रहे हैं। तो यहां पे आपको वो चीज भी नजर आएगी कि जैसा जज्बा यहां पे ज़ायरीन की खिदमत करने के लिए है, जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे यही जज्बा इमाम की खिदमत करने के लिए लोगों के अंदर मौजूद होगा। और फिर इमाम हुसैन की ज़ियारत पे जाने वालों के लिए जो अल्लाह ने अजर रखा, हर कदम के बदले में नेकियां, हर कदम के बदले में उम्र मकबूला का सवाब, हज मकबूला का सवाब। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग उम्रे का सवाब हासिल करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हज का सवाब हासिल करने के जहन में यह है कि मेरा अगले कदम पे हज है, मुझे हज का सवाब मिलेगा। इन्हें पता है कि हज के सवाब के बदले में भी जन्नत ही मिलनी है, उम्रे के सवाब के बदले में जन्नत ही मिलनी है। तो जिस जन्नत में मेरा हुसैन रहता है, हम हुसैन को मांग रहे हैं, हुसैन के साथ हर शय मुयस्सर हो जाएगी। तो ये जितने भी चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मशी पे चलने वाले इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के लश्कर में दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी का तरीका है हमारा, और हम दुनिया को बता रहे हैं कि देखो आज तुम हुसैनी लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम गिन नहीं सकते, तुम हमारे जोश और जज्बे का अंदाजा नहीं लगा सकते, तो जब फिर हमारा इमाम आएगा उसके मुकाबले में तुम लोग क्या खड़े हो सकोगे, उसके मुकाबले में तुम कुछ नहीं कर सकोगे। दुनिया कोशिश कर रही है किसी भी तरह से इन चीजों को छुपा दिया जाए, दुनिया को पता ही ना चले कि हुसैनी कितने हैं, हुसैनी कहां पे है। ये नाकाम कोशिशें हैं। जिस तरह से उन्होंने करबला में एक सहरा के अंदर, जहां पे किसी का गुजर नहीं, कोई जाता नहीं है, सहरा के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया था और कहा था दुनिया को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इस तरह से करबला को उजागर किया कि अब दुनिया का कोई ऐसा घर नहीं है जहां पे अब करबला ना हो, जहां पे जिक्र हुसैन ना हो। तो ये जो हम रास्ता तय कर रहे हैं ना, ये सीरत ज़ैनबी है, ये सीरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है। क्यों? उन्होंने पैदल सफर किए थे, तो उनकी याद में हम सफर कर रहे हैं, पैदल सफर कर रहे हैं। और जैसे इन 2 अफराद ने करबला को उजागर किया और उसी सीरत पे हम चल रहे हैं, जब उन्होंने उसे छुपने नहीं दिया, तो आज ज़ाहिरीन इमाम हुसैन कैसे हुसैन को छुपने देंगे? आज मुमकिन ही नहीं है कि इमाम हुसैन को कहीं छुपाया जा सके। कितनी देर, 1 साल 2 साल, कितने अरसा तक छुपा सकेंगे? आज मीडिया का दौर है, दुनिया हैरान है, दुनिया सवाल करती है कि लोग क्यों जमा हो रहे हैं। आज शीयत की तरफ दुनिया बड़ी तेजी से बढ़ रही है, बहुत बड़े बड़े उलमा शीयत की जानिब आ रहे हैं। देखिए, जो आजाद हैं लोग हैं ना, वो सवाल करते हैं कि भाई ये क्यों जमा है? दुनिया का सबसे बड़ा हजूम जमा हो रहा है, किस लिए? खाने के लिए, कोई सहूलतें लेने के लिए, कोई चीजें पड़ रही हैं इसलिए जमा हो रहा है? नहीं, वो कहते हैं ये तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं। यहां चलते हैं पांव फटते हैं, छोटे छोटे बच्चे चलते हैं उनकी तबीयतें खराब होती हैं, बुजुर्ग हैं वो चला नहीं जाता, जिनकी टांगे नहीं है वो स्टिक के सहारे, व्हील चेयर के सहारे हर कोई चला जा रहा है। ऐसा क्या है कि इनके ऊपर मौसमी असरात नहीं, इनके ऊपर तबी असरात नहीं, इनके ऊपर मुश्किलात के असरात नहीं? ऐसी कौन सी चीज है जो इन्हें इस चीज के लिए मजबूर किए हुए है और ये आमादा है हर चीज को इख्तियार करने के लिए? फिर जब पता चलता है ये हुसैन का इश्क है, वो फिर मजबूर हैं सोचने के लिए, पूछने के लिए कौन है हुसैन, वो हुसैन कौन है कि जिसके लिए ये सारी दुनिया चली आ रही है। फिर जब पता चलता है ये ज़हरा का बेटा, ये अली का बेटा, ये मुस्तफ़ा का नवासा हुसैन है और जो कुर्बानी हुसैन ने पेश कर दी है, जब वो हुसैन को समझेंगे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तक पहुंच जाएंगे। और ये हमारा आज़ादारी करना, ये हमारा मशी करना, हमारा जुलूसों में निकलना, अपनी बहन बेटियां बच्चों माओ बहनों को लेके आना, ये हम दुनिया को बता रहे हैं कि हम उस वक्त तो हुसैन के साथ नहीं थे, हम नहीं थे दुनिया में, लेकिन आज हम मौजूद हैं। आज हुसैन का हुसैनी इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम जब हमें पुकारेंगे, फिर हम इस तरह से घरों से निकलेंगे, हमारे बच्चे भी घरों से निकलेंगे, हमारी बहनें भी, हमारी माएँ भी, हमारी बेटियां भी, हमारे बूढ़े भी, हमारे जवान भी, हम सब निकलेंगे और लब्बैक
क्या मेहदी कहते हुए इमाम ज़मां अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हो जाएंगी। ये हम तैयारी कर रहे हैं, ये हमारा प्रैक्टिस का मरहला है। जो प्रैक्टिस के मरहले में दुनिया को परेशान कर रहे हैं, जब इमाम की नयाबत में हम निकलेंगे, जब इमाम के हम रकाबी में हम निकलेंगे, तो उस वक्त फिर दुनिया का क्या आलम होगा, फिर दुनिया किस अंदाज में हमें देखेगी, फिर आलम इस्लाम को पता चलेगा कि इस्लाम का हकीकी चेहरा कौन सा है, इस्लाम का असल मजहब कौन सा है। क्यों? क्योंकि आज दुनिया ने इस्लाम को मुख्तलिफ कलरों के अंदर, मुख्तलिफ लिबासों के अंदर, मुख्तलिफ फतावों के अंदर छुपा दिया है। असल इस्लाम दुनिया तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन हाँ, ये हुसैनी मिशन, ये हुसैनी लश्कर उस दिन बताएगा, और आज बता रहा है। दुनिया देख रही है। किसी मिल्लत और मजहब में इतनी इस्तिकामत नहीं है, किसी भी फिरके में इतनी ताकत नहीं है कि इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद, इतने मसाइब देखने के बाद फिर भी इस रास्ते से पीछे हट नहीं रहे हैं। हमारे बच्चों को ज़िबा किया जाता रहा है इमाम हुसैन की ज़ियारत पे जाने के लिए, हमारे बड़ों की गर्दनें उतार दी गई हैं इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए, लेकिन हुसैन की ज़ियारत का सफ़र नहीं रुक सका, तो इमाम की रकाबत का सफ़र कैसे ख़त्म हो सकता है। जो अपने बच्चों को ज़िबा करवा रहे हैं कि हम हुसैन की उस जरी को जाके चूम लें, तो जब इमाम ज़माना आवाज़ देंगे, पता चलेगा मेरा इमाम मुझे बुला रहा है, तो फिर कोई ताकत हमें रोक सकेगी। दुनिया को यही खौफ है, दुनिया इसी डर से डरे जा रही है कि ये इस तरह से मुत्तहिद होते रहे और इनके इमाम ने ज़हूर कर लिया, हमारे तो फांसी के कीदे तमाम हो जाएंगे, हमारे बातिल मजहब ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कोशिशें की जाती हैं, रुकावटें पैदा की जाएं, कोशिशें की जाती हैं ये हुसैनी लश्कर किसी को दिखाया ना जा सके, कोशिश की जाती है कि दुनिया की आंखों के आगे पर्दा डाल दिया जाए, जहाँ पे हुसैन का नाम आए, जहाँ पे हुसैनी लश्कर आए, जहाँ पे हुसैनी मजलिस आए। लेकिन हुसैन छुपने वाला नहीं। और आज वो इलामा इकबाल का शेर सच साबित हो रहा है, कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कोई पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। और आज वो नजर आ रहा है। इस मशीह में आपको हिंदू भी नजर आएगा, इस मशीह में आपको ईसाई भी नजर आएगा, इस मशीह में आपको यहूदी भी नजर आएगा, इस मशीह में वो भी नजर आएगा जो खुदा को नहीं मानता लेकिन हुसैन को मानते हुए नजर आ रहा है। क्यों आ रहे हैं ये सारे लोग? कभी सवाल किया है इनसे? पूछिए उन मुफक्करीन से जो इन मखलूत माशरों में रहते हैं, और हुसैन का जब जिक्र किया जाता है तो यही कहते हैं, हुसैन मजहब का नाम नहीं, हुसैन दीन का नाम नहीं, हुसैन फिरके का नाम नहीं, हुसैनियत इंसानियत का नाम है। हुसैन इंसानियत का नाम है, और वो इंसानियत आपको यहाँ पे नजर आएगी। मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ फिरके, मुख्तलिफ सोच, लेकिन सब मुत्तहिद चलते हुए नजर आ रहे हैं। चलने का अंदाज क्या है? ये लश्कर मेहदी का तरीका है कि इस तरह से इमाम ज़मां के सिपाही होंगे। सफर चल रहा है किस तरीके से? किसी के हाथ में तस्बीह है, किसी के हाथ में कुरान है, किसी के हाथ में जाए नमाज है, और वो नमाज पढ़ने के लिए, यानी ये इबादत का सफर चल रहा है। कोई किसी को तंग नहीं कर रहा है, और सफर करने वाले और उनके साथ मदद करने वाले दोनों से सवाल किया जाए, वो कहते हैं कि हमें लगता है कि शायद इससे ज्यादा इज्जत दुनिया के किसी हिस्से में हमें मुयस्सर नहीं हुई है। बादशाह यहाँ पे पांव धो रहे हैं, गंदे कपड़े वाले उनके साफ सूटों पे अपने कदम रख रहे हैं, और साफ कपड़ों वाला कह रहा है तेरा मुझ पे एहसान है कि तूने मुझे मौका दिया है। ये है इंसानियत। इस्लाम ने यही कहा था ना कि गोरे को काले पे, काले को गोरे पे कोई अहमियत नहीं है, कोई फोकियत नहीं है, अरब और अजम को कोई नहीं। आए देखें, जाए किसी और मुल्क में, अरब में, देखता हूं किस तरह अरब और अजम में इस तरह से इत्तफाक नजर आया आपको। लेकिन यहां पे क्या है? अरब जमीन पे बैठा है, अजम ने अपने कदम उसके घुटनों पे रखे हुए हैं, उसके सीने पे रखे हुए हैं, और उसके कदमों को चूम भी रहा है, उसके कदमों को चूम के साफ भी कर रहा है, और कह रहा है तेरा एहसान है ऐ ज़ाहिर हुसैन, तूने मेरे सीने पे अपने कदमों को रख के मुझे इज्जत अता की है। ये चीज आपको कहीं नजर नहीं आएगी, ये फकत अरबाइन के मकाम पे नजर आएगी। अल्लाह ने तौफीक दी है, इस ज़ायरीन के साथ कदम मिलाने की कोशिश में कुछ कदम की तौफीक मिली, और इनके साथ चल रहा हूं। जो यहाँ के जज्बे हैं, जो यहाँ पे आपको चीजें नजर आ रही हैं, वो कहीं नजर नहीं आती। मंजिलें हैं, बयान नहीं की जा सकती। खिदमत करने वालों की आंखों से आंसू जारी है। मैं एक वाक़या अर्ज़ करना चाहूंगा इंतहाई मुख्तसर वक्त में कि खिदमत करने का आलम क्या है कि लोगों के पाँव, क्योंकि चलने की वजह से छाले आ जाते हैं, वर्म पड़ जाते हैं, पाँव पकड़े हुए हैं, उसके पाँव को दबा रहा है और आंखों से आंसू जारी हैं।
کیوں آنسو جاری ہیں؟ کہا یہ اس نے میرے پہ احسان کیا ہے، ظاہر حسین نے اپنی خدمت کا موقع دیا۔ کوئی ہے جذبہ ایسا کائنات میں کسی اور جگہ کہ خدمت کا اس انداز میں جذبہ کہیں نظر نہیں آئے گا؟ یہ حسین کی مشی ہے، اور یہ مشی تا قیامت نہیں رک سکتی۔ کیوں؟ اس کی جو ابتدا کرنے والی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں، وہ ہیں جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، کہ جنہوں نے پہلی زیارت امام حسین کی جب کی تو پیدل کی تھی۔ جب اہل بیت کا قافلہ آیا تھا تو اونٹوں سے اتر گئی تھی بیویاں، اور پیدل چلتی ہوئی امام حسین کی قبر اقدس تک پہنچی تھی۔ اور یہ مشی سنت بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے، یہ مشی سنت امام سجاد علیہ السلام ہے، یہ مشی سنت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول خدا اور صحابی امام علیہ السلام کی ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، تا قیامت چلتا رہے گا، اور ان چلنے والوں کے لیے پروردگار نے اپنے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور روایات میں ہم تک پہنچا ہے، صحیح روایات میں، کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا پروردگار اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ جو اپنے گھر سے چلتا ہے اور ارادہ رکھتا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، پروردگار اس کے ساتھ ملائکہ کو مختص کر دیتا ہے، جو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے سامان تک کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ اعزاز اللہ نے ان زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے رکھا ہے، اور جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ہر اٹھتے قدم کے ساتھ نیکی ہے، ہر اٹھتے قدم کے ساتھ ثواب ہے، اور گناہوں کے معاف ہے۔ روایت میں یہاں تک ملا ہے کہ اگر کوئی انسان معرفت کے ساتھ مومن معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا، اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا، اس کی تمام جو خطائیں ہیں اللہ اسے معاف کر دے گا۔ بس آخری جملے اور تمام کرنا چاہوں گا زیارت امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے لیے۔ روایت میں ہم تک یہ پہنچا ہے، اپنے علماء سے بھی ہم نے سنا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، دیکھیے ایک ہمارا ارادہ ہم کسی کے ساتھ تعاون کریں، کوپریٹ کریں، ہم کس نہج تک کر سکتے ہیں وہ ہماری استطاعت ہے، لیکن جب اللہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا معیار ہوگا کہ اللہ نیکی کرنا چاہ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شوق پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے جاؤں۔ اے زائرین ابا عبداللہ، آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اور اس نے سمجھا ہے کہ آپ کے ساتھ نیکی کی جائے، اس نے آپ کو اس راستے پہ لا کھڑا کیا ہے۔ تو لہذا اب اس راستے پہ دھیان سے قدم رکھنا، اللہ کے چنے ہوئے ہو، حسین کے زائر ہو، امام زمان کے ساتھ چل رہے ہو، اس سے بڑھ کے تمہارا کیا مقام، کیا منزلت ہو سکتی ہے۔ تو پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار آپ کی زیارات کو قبول فرمائے۔ نعم۔ حسین